morning, students. Yesterday in previous class we have completed your practice work my turn 1, my turn 2 and my turn 3 of your chapter 3. Today we are going to start your my turn 4. Okay, this is of class 7th. There are some errors of chapter 3. There are some errors in the following sentences. Means here you can see they have given you the sentences here. There are some errors. So you have to correct that errors and you have to rewrite the sentences again. So let's see first question. Please mail the document to I. Here I. बोलते वक्त ही पता चल रहा है when we are reading the sentence. At that time only we are getting understood that there is a mistake. We should not write I here. So we have to rewrite the please mail the documents to me. Instead of I, we have to write here me. Put the full stop again. Next question 2 is B us bought this cake for you. We have to instead of us, ये प्रनाउन वाले शब्द है ना बच्चों, जहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं यूज रिफ्लेक्सिव प्रनाउन और इंटरोगेटिव प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, इंडेफिनेट प्रनाउन, ये मैंने आपको सिखाया था है ना. अकॉर्डिंग टू दैट इंस्टेड ऑफ अस वी विल राइट हियर वी बॉट दिस केक, bought this cake for you. So these are the small errors in the every sentences, so we have to correct them. Next question is these are not my files. Here this यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ गया तो हमें इसको क्या करना है, दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो लिखना है वो सही बनाकर लिखना है. सो दीज, बिकॉज if there is a plural form then we have to write the demonstrative pronoun also in a plural form. So instead of this means this is for a singular. So these, THESE, this is a plural form. These are not my files. Okay, in these way you have to correct the errors and rewrite them. Okay, next question. I bought me a calculator. I bought, instead of me what we write, I bought myself. मैं स्वयं खुद एक क्या लेके आया, कैलकुलेटर लेके आया या लेकर आई. ओके, इन दिस वे. My dog is bigger than hers dog. My dog is bigger than hers. My dog is bigger than hers. दोबारा से हमें डॉग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जब हम उसी डॉग के बारे में ऑलरेडी हम बोल चुके हैं. तो माई डॉग इज़ बिगर दैन हर्स मीन्स उसके डॉग से ज़्यादा बड़ा है मेरा डॉग. तो हम ऑलरेडी डॉग के बारे में बोल चुके हैं. सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अगेन द डॉग वी शुड omit it. Next, what are you going? So where are you going? Instead of what, where are you going? Question mark. The boys fell and hurt badly themselves. The boys fell and hurt themselves badly. इसमें कुछ ही नहीं था, बस इसको हमें सही करना था. hurt badly themselves. Instead of writing like this we have to write the boys fell and hurt themselves badly. Full stop. Next, these are sheep but that are goats. So these are sheep but those are goats. These are sheep but वो दूरी पर है. So those are goats. Why don't you tidy your room myself? Why don't you tidy your room yourself? Question mark. Next question is don't cut myself while cutting the meat. Don't cut, instead of myself we will write here don't
cut yourself while cutting the meat. Okay, in this way you have to correct the sentences and rewrite them. Okay, students. Reading and comprehension means they have given you here the paragraph passage is there. We have to read these passages, and related to this passage some questions are there. We will complete that after reading the passage. So natural disasters can take any form, like avalanche, earthquake, flood, landslide, forest fire, hurricane, tornado, tsunami, cyclone, or volcanic eruption. Already I have explained you about the natural disasters. That natural disasters like flood, earthquake, landslide, forest fire, or hurricane, tornado, many cyclones are also there, many earthquakes, or when these type of cyclones and every natural disasters occurs, they have another name. So earthquake is the shaking and moving of the ground when energy is released in waves. Earthquake is the shaking and moving of the ground. Means earथक्वेक वो होता है जैसे कि ग्राउंड में यानी ज़मीन पर क्या होता है, एक शेकिंग यानी कंपन होती है, हिलना होता है उसमें, यानी मूविंग होने लग जाती है जब एनर्जी यानी जो ऊर्जा होती है वो वेव्स यानी प्रवाह जो लहरें आती है ना उनमें वो रिलीज हो जाती है. दीज वेव्स आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. इनको सिस्मिक वेव्स के नाम से जाना जाता है. दीज वेव्स आर सिमिलर टू ओशन वेव्स. ये जो लहरें होती है ये प्रवाह के रूप में होती है जो ओशन यानी महासागर की लहरों से सिमिलर यानी उन जैसी ही होती है. विच मूव थ्रू वाटर, जो पानी के साथ बहती है. द डिफरेंस इज सिस्मैसिक वेव्स मूव थ्रू द ग्राउंड. इनमें जो अंतर है वो इतना ही है कि सिस्मैसिक वेव जो होती है वो ज़मीन के मुखांतर गुजरती है, लेकिन एक वेव जो होती है जो ओशन वेव्स होती है वो पानी में, समुद्र में, महासागरों में होती है. मोस्ट अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट कॉल्ड प्लेट्स. अधिकतर जो भूकंप होता है उनके लिए कारण एक ही चीज़ होता है कि बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है ना, हमारे पृथ्वी के 3 हिस्से होते हैं, तो उसमें जो अर्थ क्रस्ट जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं उनमें कुछ मतलब मूवमेंट जो होता है यानी गति जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होना ऑफ लार्ज सेक्शन यानी बड़ी मात्रा में बढ़ जाने की वजह से भूकंप आता है. अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो बी काज्ड बाय अदर नेचुरल इवेंट्स. अर्थक्वेक जो होता है वो कई अन्य प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनोज. लैंडस्लाइड की वजह से और वॉल्केनोज की वजह से भी भूकंप आता है. मैन मेड earthquakes happen because of nuclear testing and mining explosion. और जो मनुष्य बनाते हैं भूकंप हो जब कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ टेस्टिंग करने के लिए यानी न्यूक्लियर के लिए टेस्टिंग करने के लिए वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो तब भी कंपन महसूस करते हैं जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. और एक माइनिंग एक्सप्लोजन, माइनिंग मतलब ये जो आप जानते ही हो कि ये जो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें नीचे मिट्टी में कुछ बम्स ब्लास्ट करने के लिए रखे जाते हैं, जहाँ पर अगर किसी कदम रख दिए जाते तो फट जाते हैं. तो पहाड़ों में इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है तो तब भी हम वहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड द मेन शॉक इज ऑफन फॉलोड बाय स्मॉलर ग्राउंड ट्रेम्बल्स कॉल्ड आफ्टर शॉक्स. दीज आफ्टर शॉक्स आर द प्लेट्स settling into their new position. After shocks can continue for days after the main shock. यानी इनकी जो गति जो होती है वो मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि जब वहाँ पर जो मतलब जो बड़ा भूकंप आता है उनमें भी एक मतलब कुछ ऐसी लहरें मतलब कुछ ऐसे कंपन बाद में भी आते हैं जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं. ये लगातार कुछ दिनों के लिए ये शॉक्स हमें महसूस होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप की संभावना हो जाती है, भूकंप आकर चला जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है. तब देयर आर एन एस्टिमेटेड 5 लाख अर्थक्वेक्स अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 5 लाख के लगभग अर्थक्वेक हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक साल होते हैं. मोस्ट आर सो माइल्ड. इनमें से कुछ इतने इससे ही होते हैं जो कि मतलब माइल्ड दैट दे आर ओनली रिकॉर्डेड ऑन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. और इनमें से कुछ ऐसे अर्थक्वेक भी होते हैं जो कि केवल वैज्ञानिक रूप से जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि भूकंप कब कैसे कहाँ आने वाला है वो केवल
उन रिकॉर्ड्स में ही रह जाते हैं, हमें उनका पता भी नहीं चलता कि कब भूकंप आया और कब चला गया। ओनली अबाउट 1 लाख कैन बी फेल्ट बाय ह्यूमंस, केवल 1 लाख के लगभग ही मनुष्य महसूस कर पाते हैं कि हाँ भूकंप आया था। ऑफ दीज ओनली अबाउट 19 अ ईयर काज मेजर डैमेज, इनमें से केवल 19 ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो साल में एक बार होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। मेजर अर्थक्वेक इज पॉपुलेटेड एरियाज कैन कैज ह्यूज डिस्ट्रक्शन, मेजर अर्थक्वेक यानी जो बड़े भूकंप होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा संख्या जहाँ पर होती है, वहाँ जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। बिल्डिंग्स कोलैप्स, इमारतें ढह जाती है, रोड्स ब्रिजेस जो होते हैं वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल और गैस लाइंस जो होती है वो टूट जाती है और आग लग जाती है। इफ़ अर्थक्वेक हैपन्स इन द ओशन, अगर महासागर में भूकंप आता है, इट मेक्स अ सीरीज ऑफ ह्यूज ओशन वेव्स कॉल्ड सुनामी, अगर ओशंस में ऐसा कोई भूकंप आ जाता है तो वो होती है ओशन वेव्स जिन्हें हम सुनामी का नाम देते हैं। द सुनामी ट्रैवल्स अंटिल इट फाइनली रीचेस द लैंड एंड काजेज लार्ज फ्लडिंग, सुनामी जो होता है ये तब तक बढ़ता जाता है तब जब तक कि वो लैंड यानी भूमि तक नहीं पहुंचता और जब तक वो बहुत बड़ी बाढ़ की संभावना का कारण नहीं बनता। Disaster preparedness refers to the measures taken to prepare for and reduce the effects of disaster, that is to predict and where possible prevent disasters, mitigate their impact on vulnerable populations and respond to and effectively cope with their कॉन्सिक्वेंसेस। डिसास्टर जो होते हैं जब इनके लिए तैयारी की जाती है तो ये कहा जाता है मेजर्स लिए जाते हैं हर एक चीज़ के लिए, मतलब उनसे जो उस डिसास्टर से जो प्रभाव पड़ने वाला है उन चीज़ों के लिए वो तैयार रहने की कोशिश करते हैं, जो नुकसान होने वाला है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। दैट इज़ टू प्रेडिक्ट एंड वेयर पॉसिबल प्रिवेंट डिसास्टर, और वहाँ तक की कोशिश करते हैं कि ये जो डिसास्टर आने वाला है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। द नेक्स्ट, साइंटिस्ट आर सर्चिंग फॉर वेज टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से भूकंप को रोका जाए। दे स्टडी द हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स विथ सेस्मिक इक्विपमेंट, वहाँ मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो पढ़ने की कोशिश यानी वो अधिक से अधिक जानकारियाँ ढूंढने की निकालने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो ऐतिहासिक जो पैटर्न्स थे भूकंप के उन चीज़ों के बारे में वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उनकी जो गति होती है उनके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक सेस्मिक इक्विपमेंट का उपयोग करना पड़ सकता है। वेल दे कैन नॉट प्रेडिक्ट एन एग्जैक्ट डेट ऑफ ए फ्यूचर अर्थक्वेक, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि कब भूकंप आएगा, आगे आने वाले समय में फ्यूचर में भविष्य काल में ये नहीं बता सकते हम कि कब भूकंप आएगा, लेकिन ये पता हो जाता है कि हाँ आएगा। दे हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन अर्थक्वेक और मोर लाइकली टू हैपन, लेकिन उन्हें ये समझ में आ जाता है, वो ये समझ जाते हैं कि अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू हैपन, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि हाँ भूकंप तो ज़रूर होगा, ये घटित ज़रूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स ट्राई 6 related to this passage. Underline the correct meaning for each of the following words from the passage. Already I said you that underline the correct means, अब जो ये my turn 6 हम कंप्लीट करेंगे ये हम पैसेज से रिलेटेड ही करेंगे, या तो हम इसमें डिक्शनरी का उपयोग भी कर सकते हैं या फिर हमें, जैसे कि यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है रिलीज्ड, क्या दिया गया है, I have given you the word released. Now in front of that you can see there are 3 options. Okay, so now what you have to do, you have to underline the correct meaning for each of the following words. Means for this words you have to underline the correct meaning from these 3 words. You have to choose the correct meaning, so we have to underline that. So first is released, remove, allow to move freely और survive. Release means किसी चीज़ को आसानी से बहने के लिए छोड़ देना या ओके, सो रिमूव का मतलब होता है निकाल देना, अलाउ टू मूव फ्रीली आज़ादी दे देना, मतलब उस चीज़ को वहाँ से निकलने के लिए छोड़ देना, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, सो अलाउ टू मूव फ्रीली। नेक्स्ट इज सेक्शन, डिपार्टमेंट, ब्रांच और पोर्शन। एस्टिमेटेड, अमाउंट, रफली कैलकुलेटेड, टोटल, एस्टिमेटेड का मतलब होता है रफली कैलकुलेटेड। डिस्ट्रक्शन मीन्स नुकसान होना है ना, पैनिक घबरा जाना, वरी चिंतित होना, डैमेज
नुकसान हो जाना, सो डैमेज. नेक्स्ट इज कोलैप्स, ढह जाना. फॉल डाउन, कैच फायर और एक्सप्लोड, फॉल डाउन. नेक्स्ट एफ इज प्रेडिक्ट, स्टॉप, एग्जामिन और फॉरकास्ट. प्रेडिक्ट का मतलब होता है फॉरकास्ट, यानी पहले पता लगाने की कोशिश करना. नेक्स्ट इज जी, मेजर्स, मापना. एक्शन, वाई और गेज, एक्शंस. एच इज वल्नरेबल, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, अनप्रोटेक्टेड. वल्नरेबल का मतलब होता है जो असुरक्षित होते हैं. सिंपल साधारण, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना, यानी उस चीज़ वो आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी चिंताजनक जो होती है, कॉम्प्लिकेटेड है. सो अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित, सो अनप्रोटेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कूप, कोप, डील, इन्फॉर्म और अप्लाई. डील. मॉनिटर, record, observe and check. Question, observe and check. Okay, in this way you have to underline the correct meaning of the given words. Now let's try to complete the let's try 7, students. See you students, in my turn 7, what the time, and again we have seen read about many natural disasters occurring in the country. हमने हमेशा नेचुरल डिसास्टर्स के बारे में पढ़ा होगा. हमारे देश में जो डिसास्टर आते हैं उनके समय के बारे में हमने पढ़ा होगा, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे डिसास्टर्स लगभग दोबारा से घटते ही हैं. विच हैव कास्ट ग्रेट हैवॉक, डिस्ट्रॉइंग लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जिनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कि बहुत सारे जो लोग थे वो मर गए हैं, या संपत्ति का, लाइफ का, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है. फाइंड आउट 5 मेजर नेचुरल डिसास्टर्स. आपको अब इनमें से केवल कुछ ही 5 ऐसे नेचुरल डिसास्टर्स के बारे में पता लगाना है दैट अकर्ड इन आवर कंट्री इन द लास्ट 25 ईयर्स, जो केवल हमारे देश में पिछले 25 सालों में घटित हुए हैं. केवल उन 5 नेचुरल डिसास्टर्स की आपको ईयर यहाँ पे लिखनी है और उनका नाम लिखना है. ओके. एंड व्हाट डिवास्टेशन वाज काज्ड बाय देम, और उनकी वजह से क्या नुकसान हुआ था. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स एट होम. आप इसके लिए आप अपनी मदद, अपने घर वालों की मदद भी ले सकते हो. वैसे ये माई टर्न वाला जो होता है ये आपको प्रैक्टिस वर्कबुक आपको खुद करना होता है. सो नेक्स्ट, राइट द ईयर एंड द नेम ऑफ द डिसास्टर. अब आपको क्या करना है, जैसे आपको सब कुछ पता चल गया तो आपको केवल उनकी जो ईयर यानी जो सन होती है वो लिखनी है और उस डिसास्टर का नाम लिखना है. सो फर्स्ट वन इज, कौन सा डिसास्टर हम लिखेंगे. इन 25 सालों में जो नेचुरल डिसास्टर्स हमारी केवल कंट्री में, इंडिया में हुआ है. 1993 में लटूर अर्थक्वेक, देन नेक्स्ट 1999 ओडिशा सुपर साइक्लोन, साइक्लोन. 2011 गुजरात अर्थक्वेक. 2004 द इंडियन ओशियन सुनामी. नेक्स्ट 2018 लिख देते हैं, हमें और भी पता है लेकिन हम केवल जिनका पता है उनका लिख देते हैं. 2018 में केरला में बाढ़ आई थी, फ्लड्स आए थे. ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द नेचुरल डिसास्टर एंड द ईयर ऑफ दैट. If you know any other natural disasters name and the year, you can write that also. Okay students, those students who are not having the textbook, please write down in your fair notebook, and those students who are having the practice workbook, please fill in your practice workbook and even learn them. याद भी करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे. ओके, हैव ए नाइस डे.